Welcome everyone to our YouTube channel Royals Creation, and today we are going to cover chapter 1 of your chemistry class 10, that is chemical reaction and equation. Basically today we will cover only the most important equations, that is you can say activity of chapter 1. And as you are aware of that, activities are very important because direct questions will come from activities. So starting with the very first activity, the very first activity is the burning of the magnesium ribbon. Okay, so for this 2 mg plus O2 gives 2 mgu. So this is like this, 2 mg plus O2 gives 2 mgO. So this is basically magnesium, and when it reacts with oxygen it forms magnesium oxide. Magnesium is basically green in color, and when it reacts with oxygen it forms magnesium oxide, that is actually white in color. Now what happens when we burn magnesium ribbon? It burns with a white dazzling flame. It is very important because most of the MCQs comes like that, that when magnesium reacts with oxygen, burns with oxygen, then it burns with yellow flame, white flame, then it burns with white dazzling flame. The next thing is that it is an exothermic reaction. Most of the time you will get to come questions like which type of reaction is this. So on this you have to give the answer that it is an exothermic reaction. The next is that it is also an what, combination reaction. Why it is a combination reaction? Because have a look at this reaction. One element and one element, two elements are combining and forming a single product. When different elements combine to form a single product, then this is called a combination reaction. Third is that the question that from here asked is why magnesium ribbon need to be cleaned before it has to be burned in the air. So very important question. I have seen many PYQ analysis, and from there this type of question come. So why magnesium ribbon need to be cleaned before burning? Magnesium ribbon need to be cleaned before burning because it forms a layer of magnesium oxide over it. ठीक है? Why? Because when it reacts with O2, ठीक, reacts with O2 from where? From O2 from atmosphere. तो जब magnesium ribbon reacts with O2 from atmosphere, so it forms magnesium oxide, and that's why we need to clean it with sandpaper so that it can be ignited properly. From which thing? From sandpaper. Okay, and it is an exothermic reaction. One thing that I have to tell you is that most of the combination reactions are exothermic, but basically there is a combination reaction that is actually endothermic. Combination reaction that is endothermic. So you don't have to go more deeply in this topic, but I have to tell one thing, that N2 plus O2 plus heat, that is you can write heat here, or you can denote over here, or basically I will recommend you to use this because NCERT uses this format. N2 plus O2 gives 2NO. What is this? This is an endothermic reaction, as I have told, endothermic reaction, and it is an exception because most of the combination reactions are exothermic reaction. Okay, so this much. सो वंस सम अप बोथ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज़ जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. मैग्नीशियम ग्रे कलर का होता है, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का होता है. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. और क्वेश्चन पूछता है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों क्लीन करना चाहिए विद द सैंड पेपर? तो बिकॉज इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ओवर इट व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर. एक मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, बट ये एक ऐसा रिएक्शन है जो मैंने यहाँ लिखा है, ये एंडोथर्मिक है. N2 प्लस O2 फॉर्म्स 2NO. ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. मूविंग एट टूवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन. द नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट कि सेकेंड इज द PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki gives PbI2 plus 2KNO3. Basically this is what? Precipitate. This is aqueous. This is also aqueous. The one thing I have to told you is that कि NCERT दैट इज़ जो CBSE ये बताया है CBSE ने कि आप अगर फिजिकल इक्वेशन यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं इनकी फिजिकल स्टेट, तो आप हर जगह कीजिए. अगर आपको नहीं आता है तो आप कहीं भी फिजिकल स्टेट्स को मेंशन मत कीजिए. अब देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस व्हेन रिएक्ट्स विद 2Ki. देखो बेसिकली ये क्या है? ये लेड नाइट्रेट है. तो लेड नाइट्रेट तो कलरलेस होता है, नहीं होता है, लर्न कर लो. एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कलरलेस होता है,
कलरलेस होता है। बट व्हेन इट रिएक्ट्स विद पीवी, सो व्हेन बोथ रिएक्ट्स इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ PbI2। और ये जो होता है ये होता है आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट। अब ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी कि जो पोटेशियम आयोडाइड होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और ये 2KNO3 दैट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट ये अगेन से कलरलेस होता है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया? ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये इसलिए है बिकॉज टू आयनिक कंपाउंड्स आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग टू न्यू प्रोडक्ट्स बाय चेंजिंग देयर आयंस। देखो PbNO3 का होल ट्वाइस था, मतलब लेड नाइट्रेट था, और ये एट लास्ट देखो रिएक्ट किया Pb और I, यहाँ का I यहाँ Pb के साथ आ गया। इसीलिए इस रिएक्शन को इसीलिए पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। ये सब चीज़ें आपसे MCQ में पूछता है, और इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। एक रिएक्शन कई सारे नामों से जाना जाता है। तो ये देखो बेसिकली क्या हुआ, PV के साथ I आ गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, और K के साथ NO3 चला गया, तो PbI2 बन गया, 2KNO3 हो गया, और ये देखिए ये कलरलेस है, ये येलो PPT है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हमेशा प्रेसिपिटेट ही रहते हैं, जैसे PbI2। इन चीज़ों को लर्न कर लो, क्योंकि अभी क्लास 10th में केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा PPT, जैसे ये PbI2 हो गया, कहीं AgCl दिख जाए तो वो भी हमेशा ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेट ही। BaSO4 जैसे कि आपको पता होगा, इसी में आगे हमारे चैप्टर में है BaSO4, ये भी ऑलमोस्ट हमेशा प्रेसिपिटेट रहता है। आप लोग ये समझो हमेशा ये प्रेसिपिटेट ही रहता है अभी तो हम लोग के सिलेबस में। तो PbI2, AgCl, BaSO4, CaCO3, ये सब जहाँ देखें वहाँ पर तुरंत तुम प्रेसिपिटेट बना देना। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स डायरेक्ट क्वेश्चन दें, हो सकता है वो लोग ऐसे क्वेश्चंस दें कि जिसमें यही सेम चीज़ का फॉर्मेशन हो और तुम्हें बताना पड़े कि हाँ ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। तो PbI2, AgCl, BaSO4, CaCO3 ऑलवेज प्रेसिपिटेट। अभी के लिए इतना याद रखो, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भी बहुत होते हैं, जब आगे जाओगे तो बहुत ज़्यादा एसिड डाल देंगे तो प्रेसिपिटेट नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं इसमें एक्चुअल में होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक मतलब एग्जांपल है आपके NCERT में, उस एग्जांपल में दिया है Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। अब इतना तो आप लोग कर लेना कि बैलेंस कर लेना, और यहाँ पे देखिए ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, अल्टीमेटली ये भी एक्वस फॉर्म में ही होगा। तो देखो Zn व्हेन रिएक्ट्स विद 2HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। ऐसा क्यों होता है? देखो चैप्टर 1 में ये चीज़ें तो नहीं दी हैं डिटेल में, बट पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकेंड थिंग, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, यहाँ पर हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। और एक चीज़ पूछा जाता है कि कुछ गैस फॉर्मिंग रिएक्शंस का नाम लिख दो, तो देखो यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन भी है, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन भी है। थर्ड थिंग ये है कि यहाँ पर देखो Zn प्लस 2HCl रिएक्ट्स टू फॉर्म ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। अच्छा तुम्हारे लिए दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि चैप्टर 1 में चीज़ें नहीं बताई गई हैं, बट देखो एक सीधा सा फॉर्मूला, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, HCl क्या है? HCl एसिड है, तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन, ये यूनिवर्सल फैक्ट है तुम्हारे लिए। सेकंड थिंग यहीं लिख लो, मेटल प्लस बेस अगर रिएक्ट करते हैं फिर से सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा। अभी के लिए ये फैक्ट है, कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है। बट ऐसे देखो, मेटल हाँ जिंक मेटल है, एसिड हाँ HCl एसिड है, सॉल्ट बना हाँ, हाइड्रोजन निकला हाँ। तो ये ऐसे ही फॉलो होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लोग और अगर लें तो हाँ देखिए Zn प्लस H2SO4। अब यहाँ 2 मत लगा देना, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन के लिए है यहाँ पे एफिनिटी। तो देखो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, देखो इवॉल्व हो गया, सेम फॉर्मेट फॉलो हुआ, मेटल प्लस एसिड, मेटल हुआ एसिड हुआ, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल गए। तो ये आपका मेटल था, ये आपका एसिड था, दोनों रिएक्ट किए, ये मेटल ये सॉल्ट बन गया और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। ये भी क्या है? ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है मैं भी वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे जिंक है, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। अब जो नेक्स्ट थिंग आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या रिएक्टिविटी सीरीज़?
रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपको ऐसे अभी बताता हूँ क्वेश्चंस आपको इसमें से किस तरह से आते हैं। जैसे देखिए के तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, जरा फीके से के लिए देखो फीके से पकाता है, यहाँ हाइड्रोजन सेपरेशन के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद कुकर, हांडी, हांडी के बाद आग और पतीला बोलते हैं, बट आपके लिए इतना ही। अब देखो होता क्या है, ये पूरी मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग, ये तो सेपरेशन के लिए हाइड्रोजन का यूज़ होता है यहाँ पर बेसिकली, और ये सारे के सारे कैसे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है अपने ये मेटल्स जो हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो देखो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुकर, हांडी, आग और पतीला। अब यहाँ पर देखो के का मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड देन आफ्टर मरकरी, मतलब मरकरी हो गया, एंड देन गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न रहेगा। ये जब लर्न रहेगा तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को सही तरीके से कर पाओगे। जैसे अभी आपको इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, मेनली वो में बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में आते हैं। जैसे कि अगर आप FeSO4 के साथ अगर हम FeSO4 के साथ, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। FeSO4 के साथ अगर आप Cu का रिएक्शन करवा दीजिए, मान लीजिए कॉपर का, ठीक है, सॉलिड में रखो इसको, इन दोनों का रिएक्शन आपने करा दिया, क्या रिएक्शन होगा? क्या CuSO4 प्लस Fe बनेगा? नहीं बनेगा। रिएक्शन क्यों नहीं होगा? आप खुद से चेक करो कि जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है देन Cu। अब जब Fe Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है तो Cu की कहाँ इतनी पोटेंशियल है कि ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर ले। जब Cu इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता तो आखिर ये रिएक्शन होगा कैसे? FeSO4 प्लस Cu, ये एक्वस फॉर्म में था, ये सॉलिड था, तो नो रिएक्शन होगा। बट यहीं पर आप देखो, अगर हम Fe के साथ CuSO4 का रिएक्शन कराएं तो देखो Fe जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में, फिर से रिएक्टिविटी सीरीज देखो, KNaCaMg एल्युमिनियम जरा फीके से पकाता है, कुकर, हांडी, आग और पतीला, ठीक है, आग और पतीला। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे आपने देखा कि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे था बट Fe इससे ऊपर था, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, ठीक। बट देखो Fe तो कॉपर से ऊपर है, Fe क्या निकल यहाँ से। अब इसने कहा FeSO4 प्लस Cu हमने बना दिया भैया। अब ये तो गए काम से, इनका काम इसने ख़त्म कर दिया, ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा। अब देखो ये बहुत ही चलता फिरता क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ये क्या है? ये है आयरन। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। इन सब क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना कि रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रहे, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखे रिएक्टिविटी सीरीज़ दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करा लेना। ये क्या है? ये है आपका आयरन सल्फेट, दैट इज़ बेसिकली फेरस सल्फेट कह लो तुम, ठीक है। और ये क्या है? ये है आपका कॉपर, ठीक है। अब क्या देखो, आयरन तो आयरन होता है, आयरन एक्चुअली देखा जाए तो सिल्वर ग्रे कलर का होता है, बहुत सारे लोगों को आयरन का कलर नहीं पता, सिल्वर ग्रे कलर का होता है। ये जो CuSO4 होता है, CuSO4 को क्या कहते हैं हम लोग? ब्लू विट्रॉल कहते हैं, तो ये ब्लू कलर का होता है। अब FeSO4 बन गया तो ये ग्रीन कलर का होगा। कॉपर तो सबको पता होना चाहिए कि ये ब्राउन कलर का होता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, या फिर रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो जब आयरन जो है CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो FeSO4 प्लस Cu बनता है, ये हमें पता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता। ये क्वेश्चन पूछेगा व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन नेल को इसको यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब डिप कर दिया गया तो बताइए क्या चेंजेस होंगे। तो आप चेंजेस लिखो, सीधे से चेंजेस लिखो। पहला, ब्लू से कलर चेंज होकर के ग्रीन में चला जाएगा, ठीक। दूसरा, जो हमारा आयरन नेल होगा ना, आयरन नेल उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाएगा। किसका डिपोजिशन होगा? डिपोजिशन होगा कॉपर का। तो कॉपर का जब डिपोजिशन होगा तो आयरन नेल का कलर क्या होगा? आयरन नेल का कलर ब्राउन हो जाएगा। ये आपके मेनली थे डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपका, वो नेक्स्ट रिएक्शन तो इस फॉर्मेट में है, जैसे कि, तो इसको मैं कम्प्लीटली बताता हूँ, बट पहले आप देख लो रिएक्शन आपकी बुक में कैसे दिया है। तो रिएक्शन जो हमारी बुक में दिया है वो CaO है प्लस H2O है।
तो ये तो बेसिकली लिक्विड ही होगा। इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट खूब निकलेगी, हीट बिल्कुल हीट निकलेगी। अब देखो CaOH को क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, क्विक लाइम इसको कहते हैं। इसे रटना नहीं पड़ेगा, अभी इसका काम ख़त्म कर देते हैं हम, ऐसा इसे रट जाएगा। ये क्या होता है, स्लेट लाइम होता है। ये होता है क्या, स्लेट लाइम होता है। अब देखो ये तुम्हारा क्या था, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, जब MCQ पूछेगा तो कहीं भी एक ऑप्शन लिखता ही नहीं है, वो ऐसे लिखेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देगा कॉम्बिनेशन के साथ एंडोथर्मिक लिख देगा, कॉम्बिनेशन के साथ एक्सोथर्मिक लिख देगा, और वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, जब आप चूने को पानी के साथ मिलाते हो तो चूना जब पानी में मिलता है तो जो बीकर होता है, बीकर यहाँ हीट निकलती हुई मिलती है, और जब हीट जब इवॉल्व होती है तब उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जब हीट इवॉल्व होती है तब उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिफरेंस। तो एंडोथर्मिक में जो हीट होती है वो रिएक्टेंट साइड में होती है, एक्सोथर्मिक में हीट प्रोडक्ट साइड में होती है। देखो प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। अब बेसिकली ये तो था हमारे NCERT का। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो होता है वाइट वॉशिंग के लिए। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर व्हाट, ये यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए, अब वाइट वॉशिंग के लिए कैसे यूज़ किया जाता है इसे हम लोग डिटेल में सुना। तो जो हम लोग का ये था क्विक लाइम वाला, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, जो कि आपको बताया गया है नहीं, बट ये देखो क्विक लाइम फॉर्मेशन, क्विक लाइम का रिएक्शन नहीं, हम क्विक लाइम का फॉर्मेशन ही पढ़ देते हैं। तो देखो CaCO3 को आप हीट कर दो, बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लाइमस्टोन, ठीक है। अब इसे जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, इसे हीट करोगे तो CaO प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी। देखो CaO और यहाँ से बचा हुआ CO2 यहाँ आ गया, ठीक। ये क्या होता है, मैंने कहा ना, ये होता है आपका क्विक लाइम। अब लोग क्विक लाइम आता कहाँ से है ये आपको पता चल गया, ठीक है। क्विक लाइम आता कहाँ से पता चल गया। अब जो हमारा रिएक्शन था वो ऐसे था, CaO जो कि बेसिकली सॉलिड होता है, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ H2O जो कि बेसिकली लिक्विड होता है, इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो देखो फॉर्मेशन किसका होता है, CaOH के होल ट्वाइस का। क्यों, देखो CaOH का होल ट्वाइस, यही रिएक्शन को बैलेंस करना, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 2 हो गया, और कैल्शियम की जो बैलेंस होती है वो +2 होती है, तो ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, प्लस हीट निकलेगी भैया, मैंने बताया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अभी ये वाइट वॉशिंग के लिए क्यों यूज़ किया जाता है ये भी देखना। जो CaOH है, अगर हम इसका रिएक्शन बेसिकली CO2 के साथ करा देते हैं तो ये क्या बना लेगा, देखो ये फिर से CaCO3 बनाएगा, ठीक है। तो देखो CaCO3 प्लस, अब ध्यान से तुम देखोगे, थोड़ा सा इक्वेशन को बैलेंस करने आता होगा तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 और एक एलिमेंट का मतलब एटम बचा था ऑक्सीजन का, तो जो वाटर बचा था वो निकल गया। अच्छा, ये वेपराइज्ड फॉर्म में निकल जाता है, CaCO3 ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाता है। मैंने कुछ एलिमेंट्स के अभी तुम्हें मतलब कुछ बताए थे कंपाउंड्स के नाम, जैसे CaCO3, AgCl, ठीक है, और PbI2, ये सब हमेशा प्रेसिपिटेट ही होते हैं। देखो यहाँ पे CO3 प्रेसिपिटेट होता है, इससे लर्न कर लो, ये तुम अगर लर्न कर लोगे तुम्हारे बहुत बेनिफिशियल होगा। अब कहता है क्यों इसे वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, देखो सर, आपने जब CaO का रिएक्शन वाटर के साथ कराया, CaOH मिल गया, इसे हमने वॉल पे अप्लाई कर दिया। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है वो क्या है, ये हो गया क्या, क्विक लाइम, मैंने बताया। ऐसे इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हें लर्न हो जाएगा, पूरी क्लास 10th नहीं भूलेगा। क्विक लाइम हो गया, स्लेक्ट लाइम हो गया। अब इसी स्लेक्ट लाइम का हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, इसी स्लेक्ट लाइम का रिएक्शन हमने करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब इसका रिएक्शन कराया तब ये क्या बन गया, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट। यही डिफरेंस पूछता है कि इन दोनों कैल्शियम कार्बोनेट में क्या डिफरेंस है, ये प्रेसिपिटेटेड है और ये सॉलिड है। अब देखो ये जो है होता है, ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, तो यही हम लोग करते हैं जब चूने को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं और उसे वॉल पे अप्लाई करते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो 1 दिन या 1 से 2 दिन के अंदर 24 घंटे में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हमें वाइट कलर दिखती है दीवारों पे। तो इसीलिए CaO इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तुमको दे देगा कि अब देखो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन देख लो तुम लोग कि एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ पे आते कैसे हैं। व्हेन X रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स X हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन ऐसे देगा,
and led to the emission of heat, and X is used in the cement industries, X is used in the cement industries, ठीक है। और ये शायद तुम्हारी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बट ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, तो ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और हमारे बोन में भी पाया जाता है। अब तुमने अगर 2-3 बार भी ये रिएक्शन पढ़ा होगा, तुम्हारे दिमाग में सीधे सी ए स्ट्राइक करेगा, सी ए का सी ए, और इसका यहाँ पे पूछता है ओ ऑक्साइड, तो मैंने सी ए ओ, ये हो गया सी ए ओ प्लस वाटर रिएक्शन टू फॉर्म सी ए हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलेगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी बता दिया, वाइट वॉशिंग का पूरा फॉर्मेशन भी समझा दिया, लाइम स्टोन कैसे बनता है वो भी बता दिया, किस तरह से लाइम स्टोन का फॉर्मेशन हो। जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वो है बेसिकली हमारा ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये तो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक्स टू फॉर्म मेनी कंपाउंड। जैसे ए बी सी था, इसको हमने कहीं से हीट दे दी तो ये ए प्लस बी प्लस सी में टूट गया। अब यहाँ पर केवल हीट नहीं हो सकता है, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, सनलाइट हो सकती है। सनलाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच म्यू से, तो सनलाइट हो सकती है। तो इन तीनों में जब एक प्रोडक्ट ब्रेक्स इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स देन इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखोगे कैसे? व्हेन अ प्रोडक्ट ब्रेक्स इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स, when a compound breaks into many simple compounds with the help of energy, and energy can be in the form of heat, electricity, sunlight। देखो केमिस्ट्री में डेफिनेशंस खुद से बनाओ इक्वेशंस को समझ के, क्योंकि रटोगे तो आगे अभी 4 चैप्टर बाकी हैं। तो ये सनलाइट इसकी फॉर्मेट में हो गया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिया है वो क्या है? FeSO4.7H2O, ये हो गया। कहा है कि NaFeSO4.7H2O हीटेड। अब देखो FeSO4.7H2O क्या होता है? FeSO4.7H2O होता है ग्रीन विट्रॉल। तो ये किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। इसे हीट करोगे तो क्या बनेगा? इसे हीट करोगे तो FeSO4+7H2O बनेगा। अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं FeSO, बेसिकली इसे कहते हैं एनहाइड्रस। अब ये देखो FeSO4 है, Fe पे +2 का चार्ज है, तो Fe पे +2 का चार्ज है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फेरस। और SO4 को क्या कहते हैं? SO4 को कहते हैं सल्फेट। अगर यही +3 का चार्ज होता तो इसे फेरिक कहते। अब ये फेरस सल्फेट है, ये एनहाइड्रस है। अच्छा, इसका कलर क्या होगा? बेसिकली वाइट होगा। अब आप जब इसमें से वाटर को रिमूव कर देते हो तो ये वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है, ये वाइट कलर का हो गया। नेक्स्ट थिंग क्या है? जब ये वाइट कलर का हो गया, अब हमें और इसे डिकम्पोज करना है। तो चलो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2HCl को, अच्छा ये एक्वस होता है, देखो ये भी एक्वस फॉर्म में ही जाएगा, और ये भी आपका, ये तो लिक्विड हो गया, वाटर निकल गया। तो देखो FeSO4 है, इसी जब आप हीट करोगे फिर से हीट कर दो, फिर से हीट कर दो। अब ये क्या बनाएगा? देखो Fe2O3 सॉलिड है, SO2 गैस है, SO3 गैस है। अब ये जो रिएक्शन हुआ ये एक्चुअल में तुम्हें लग रहा है मतलब ये हुआ कैसे? 2Fe, पहले तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन है क्योंकि एक प्रोडक्ट देखो 3 प्रोडक्ट्स में टूटा। अब ये जो रिएक्शन हुआ ये जो है इसे क्या कहेंगे? इसे मैंने बताया अभी कि यहाँ पे Fe पे इस बार 3 का चार्ज है, तो देखो इसे क्या कहेंगे? फेरिक ऑक्साइड। बातों को रिलेट करो, पिछली बातों को आगे लाकर जोड़ो, समझने में बहुत आसानी होगी। ये क्या है? ये है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सेम उसी तरह से ये क्या है? ये है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये हो गया। अच्छा, इसका कलर क्या होगा? देखो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक। ये क्या है? इसका स्मेल पूछता है, तो ये कैसे स्मेल देता है? ये देता है स्मेल बर्निंग एग लाइक स्मेल, बर्निंग सल्फ़र लाइक आप यहाँ पे कर लेना, क्योंकि जिस तरह से बर्निंग सल्फ़र लाइक स्मेल, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, अब ये कैसे हुआ? देखो सिंपल, एक प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट में टूटा, इसीलिए क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपसे मैं कहूँगा कि आप अपने रिएक्शंस को 5-10 बार पढ़ लो, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इसे समझने में। अच्छा, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बताओ? जब यहाँ पर हमने क्या दिया? हीट दिया। अच्छा, हीट देते हैं तो कौन सा रिएक्शन कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कौन सा? सनलाइट देते हैं तो कौन सा? जब हम लोग यहाँ पर हीट से जब हम लोग इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट? थर्मल डिकम्पोजिशन।
अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से कराते हैं तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कराएंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस। सनलाइट से कराएंगे तो क्या, फोटोलाइसिस। ठीक है, अब यहाँ लाइसिस की जगह आप डिकम्पोजिशन भी कर लोगे, क्योंकि लाइसिस का मतलब ही होता है डिकम्पोजिशन। देखो, लाइसिस मीन्स डिकम्पोजिशन, तो आप लाइसिस टर्म यूज़ करो, डिकम्पोजिशन टर्म यूज़ करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये क्या था, यहाँ पे मैंने हीट थी, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपको इसमें से क्या लर्न करना है और कैसे लर्न करना है, ये ऐसे पूछेगा कि a metal that is basically used in the construction at many places, when its sulfate is decomposed, then it led to the formation of a reddish brown residue and led to the formation of gases ऑफ द सेम ऑक्साइड एंड ट्राई ऑक्साइड। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें अगर ये इक्वेशन, देखो एनसीईआरटी में क्लास 10th में ज़्यादातर रटा इक्वेशन पूछता है, वो एक्टिविटी से डायरेक्ट। तो अगर तुम्हें ऐसे लर्न रहेगा 2FeSO4 व्हेन हीटेड गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो तुम तुरंत करोगे कि ओके SO2 SO3 वाला रिएक्शन है, हम इसे कर देंगे। यहाँ पर जो हमें लर्न रखना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये बहुत जगह काम आएगा, ये है FeSO4.7H2। इसका कलर लर्न कर लेना, ये ग्रीन होता है। और वहीं पर अगर केवल FeSO4 आ जाएगा तो मतलब इसके साथ देखो ये जो होता है वाटर नहीं है, तो वाटर नहीं है तो ये क्या होगा, तब ये वाइट इन कलर होगा। चैप्टर 4 में से और डिटेल में पढ़ोगे। बाकी ये इतना, ये दोनों यहाँ पर लर्न करने वाली चीज़ें हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारा है 2PbNO3 होल ट्वाइस। अब देखो ये लेड नाइट्रेट है, इसे यहीं पर लिख लो, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, लेड नाइट्रेट। व्हेन अब इसे हम लोग करने वाले हैं डिकम्पोज। तो जब तुम डिकम्पोज करोगे तो ये पहले तो टूटेगा 2PbO में। अब 2PbO का अगर हम लोग स्टेट देखें तो ये सॉलिड होगा, प्लस ये फर्दर ब्रेक होगा, यहाँ देखो 2 हो जाएगा ना, तो 4NO2 प्लस O2, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये सॉलिड है। अब यहाँ पे देखो ये इसका कलर क्या होता है, बहुत नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है, वाइट कलर का होता है। अब ये कौन सा कलर होता है, ये होता है येलो कलर का रेसिड्यू। ठीक है, ये देखो इसका कलर कौन सा होता है, ये होता है ब्राउन कलर का फ्यूम। फ्यूम मतलब बेसिकली धुआं। अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो ये भी हमारी गैस हो गई, ये हमारा जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली आपको या तो बैलेंस करने को दे देगा और या फिर कहेगा द नाइट्रेट ऑफ लेड व्हेन डीकम्पोज्ड फॉर्म्स द ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड इट्स ऑक्साइड, सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल। बेसिकली मैंने जहाँ तक इसे देखा है, ये या तो क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए आता है, इक्वेशन, और या तो फिर इस इक्वेशन को बहुत कम जगहों पर पूछा गया है। बट हमें इसे कैसे लर्न करना है कि व्हेन लेड नाइट्रेट डीकम्पोज्ड इट फॉर्म्स लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जो कई बार बोर्ड्स में आया, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन है जो यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछता है, वो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर ले जाता है। जैसे 2PbNO3 का होल ट्वाइस दिया है हमारी एनसीईआरटी में, 2PbO जो कि सॉलिड प्लस 4NO2, बेसिकली ये देखो ये ब्राउन फ्यूम में निकल जाएगा O2। तो ये क्या करता है, इसे थोड़ा सा चेंज कर देता है, यहाँ पर रख देता है कॉपर। अब देखो 2CuNO3 का होल ट्वाइस गिव्स व्हाट, 2CuO प्लस। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को थोड़ा सा चेंज करते हुए चलना है और आपका इक्वेशन फिर से एकदम से रेडी। अब इसमें कैसे पूछता है, अ नाइट्रेट ऑफ अ ब्राउन सब्सटेंस, दैट इज साइनी नाइट्रेट ऑफ अ ब्राउन सब्सटेंस व्हेन decomposed led to the formation of its oxide and a brown colored fume and led to the formation of the very important gas that is used by animals for respiration। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन में देखो डिटेल्स क्या क्या दी जाएंगी। क्वेश्चन में दिया रहेगा, पहले दिया रहेगा कि एक साइनी ब्राउन कलर का नाइट्रेट है। अब साइनी ब्राउन अगर तुम्हारे ब्रेन में आते ही ये
जो है इंसिडेंस हो रहा है कि हाँ शाइनी मतलब जो है कॉपर, तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ गई 2CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। कहता है व्हेन डीकम्पोज्ड, तो जब इसे हम लोग डीकम्पोज कर देंगे, व्हेन डीकम्पोज्ड, ठीक है, जब इसे हमने डीकम्पोज किया तो उसने क्या कहा, शाइनी ब्राउन कलर का ही ऑक्साइड बना। तो एक्स का ऑक्साइड प्लस क्या कहा उसने कि जो है ब्राउन कलर का फ्यूम। अब देखो ब्राउन फ्यूम का मतलब एनसीईआरटी चैप्टर 1 में सीधे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस, और एक और उसने क्या बताया कि गैस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पायरेशन। अब आपको पता होगा कि रेस्पायरेशन में बिना ऑक्सीजन के काम ही नहीं चलता, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ब्रेन में आना जाना चाहिए। अब ये आ गया तो देखो पूरी इक्वेशन यही आपके माइंड में रहने कर गई, तुरंत लिखो बढ़िया से एकदम से 2CuNO3 का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में लिख दो, इसे एक्वस लिख दो, इसे गैस उड़ाओ, अपना पूरा मार्क्स सिक्योर करो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा हाँ, आप यहाँ पर इसको और किस किस चीज़ का देखो एग्जांपल दे सकते हो, इसको और आप एग्जांपल दे सकते हो कि ये एक क्या है, कलर चेंज का है, और क्या है, गैस फॉर्मिंग। आखिर क्यों, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप यहाँ पर देखिए ये वाइट कलर का था 2PbNO3 का ऑल्टर, ये क्या हो गया, ये येलो रेसिड्यू था, तो ये कलर चेंज हो गया। इसी फॉर्मेट में देखो जब कलर चेंज आएगा तो ये आएगा क्वेश्चन, और अगर मतलब आपको थोड़ा सा बेंड करना होगा तो ये क्वेश्चन आएगा। 4Na2 ये ब्राउन कलर का फ्यूम हो गया, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ये था ऑक्सीजन, तो ये गैस इवॉल्व हो रही है, यहाँ भी देखो गैस इवॉल्व हो रही है। तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारा है कि 2H2O, जो कि बेसिकली लिक्विड होता है, इस पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो, अब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे क्या होगा, देखो 2H2 ब्रेक्स डाउन प्लस O2 ऑक्सीजन निकलेगा। अब जो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो क्या क्या हैं, तो पहले तो ये एक ऐसा रिएक्शन है, कैसा है, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हैं बेसिकली से। अब यहाँ पे देखो कहता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन, तो 2:1, क्योंकि 2H2O का देखो यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए 2H2, तो 2H2 प्लस O2 यहाँ पे, तो ये 2:1 के रेशियो में है, 2:1 के रेशियो में है, ठीक है। ये देखो 4 है, ये देखो 2 है, 4 2 कट करोगे 2:1 आएगा। अब ये 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन कहाँ निकलता है, हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे, ठीक है। अब ऑक्सीजन एनोड पे, अब ये जो कैथोड है और एनोड है, इन दोनों पे ये हो गया, इस पे हाइड्रोजन जाएगा, इस पे ऑक्सीजन जाएगा। अब इन दोनों गैसेस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन एक्सिलरेट्स कम्बसन, कहीं आग वाग लगी हो, थोड़ा और ऑक्सीजन, तेज़ी से ऑक्सीजन पास कर दो, फिर देखो आग। और ये हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन बेसिकली बर्न्स विथ क्या, पॉप साउंड। और कुछ पढ़े लिखे लोग, थोड़ा और पढ़े लिखे लोग इसको कि पॉप साउंड कहते हैं, तो इसको कि पॉप साउंड के साथ ये बर्न करता है। जब भी आप इसे लेकर के जाएंगे फायर के पास ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये इतना इस क्वेश्चन इसमें से पूछता है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है। और आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये गैस फॉर्मिंग का भी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर गैस फॉर्मिंग हो रही है। स्टेट चेंज का भी एग्जांपल है, बिल्कुल है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन इज ऑलवेज ट्वाइस इन द रेशियो एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये यहाँ से इतने क्वेश्चंस होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो जैसे कि 2AgCl दैट इज़ सिल्वर क्लोराइड। अब नेम वगैरह सब कुछ लर्न होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर रिटन इक्वेशन आ जाती है और उसे हमें इसको प्रेजेंट करना होता है इक्वेशनल फॉर्म में। तो व्हेन 2AgCl, अब 2AgCl पे क्या है, H म्यू दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट भी लिख सकते हो, या तो H म्यू लिखो या तो सनलाइट लिखो। अब 2AgCl किस कलर का होता है, 2AgCl वाइट कलर का होता है। इस पर जब सनलाइट ड्रॉप होगी तो ये 2Ag बेसिकली, अब देखो 2Ag जो है वो ग्रे कलर का होता है, सिल्वर का रियल कलर है। अब 2Ag हो गया बेसिकली ग्रे कलर का हो गया, एंड तो ये हो गया आपका सॉलिड, प्लस Cl2 तो गैस की फॉर्म में निकलेगी, लेकिन Cl2 गैस कलर का कलर क्या होता है, तो कलर होता है येलो ग्रीन कलर की गैस होती है।
कौन सी गैस है? क्लोरीन। क्या फॉर्मेशन हुआ? Ag सिल्वर क्लोराइड का ब्रेकडाउन हुआ, डिकम्पोजिशन सिल्वर प्लस क्लोरीन। अब इसमें क्या है, ये पहला तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ साथ जो इस रिएक्शन का यूज़ है ये कहाँ होता है? ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में तो आपको सीधे से दे देगा द रिएक्शन विच इज़ यूज इन द ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। तो आप ज़्यादा मत सोचना, यही सेम इक्वेशन उतार के चले आना। या फिर एक और इक्वेशन है 2AgBr। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है पेल येलो कलर, दैट इज़ लाइट येलो कलर। अब 2AgBr का क्या मतलब होगा? ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसे अगर आपने एच म्यू बेसिकली क्या है? सनलाइट है, सनलाइट है। इसको जब आप पास करा देंगे तो 2Ag जो कि सिल्वर है प्लस Br2 ब्रोमीन है। अब देखो Br2 ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। अब ब्रोमीन जो होता है तो ये देखो ये ग्रे कलर में आ जाएगा। अब ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन गैस निकल गई। ब्रोमीन जो गैस होती है वो एक्चुअल में ब्राउन कलर की होती है। तो यहाँ पर ये अब देखो ये दोनों दोनों रिएक्शन में सनलाइट है। तो कैसा हो गया ये दोनों रिएक्शन? फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है या नहीं? फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। अच्छा डिकम्पोजिशन भी है, डिकम्पोजिशन तो यहीं में आ गया ना, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये आपका हो गया। अब बस इतना याद रखना कि दोनों रिएक्शन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। तो बेसिकली ये दोनों रिएक्शन हमने पढ़ ली, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। 2AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन। येलो ग्रीन कलर की गैस होती है। ये सब चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है लर्न करना, क्लोरीन का कलर, ब्रोमीन का कलर, ठीक है। तो Br2। अब ये देखो ये येलो ग्रीन कलर, मैं इसको सेपरेटली इसलिए लिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर कहाँ कहाँ तक काम आएगी अभी देखते रहना, केवल तुम लोग 10th में आगे बढ़ोगे भी ज़रा। ये और ये ब्रोमीन जो है ये आपकी क्या है? चलो रेड ब्राउन लिख लो, पसंदीदा कलर लिख लो रेड ब्राउन। तो ये रेड ब्राउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कर हो गया रेड ब्राउन। तो रेड ब्राउन कलर की गैस होती है। अच्छा इसके बारे में एक फ़न फैक्ट, ओनली नॉन मेटल, क्या है ये एक ओनली नॉन मेटल है फाउंड इन लिक्विड स्टेट, फाउंड इन लिक्विड स्टेट, फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा तो यहाँ पे आ क्या होगा कि तब हमने तो पढ़ा था कि मरकरी जो होता है वो क्या होता है? तो जो मरकरी होता है, मरकरी ये मेटल होता है, ये नॉन मेटल नहीं होता। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो मरकरी जो है वो एक मेटल है फाउंड इन लिक्विड स्टेट, फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ये भी लिक्विड स्टेट में फाउंड किया जाता है। तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन नॉन मेटल है। और ये मरकरी क्या है? मरकरी मेटल है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट हमारा फिर से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसका मैंने पहले एग्जांपल लिया था, बट हम लोग यहाँ फिर से कर देते हैं क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में दिया है। तो Fe इज सॉलिड प्लस CuSO4। देखो पार्टिकुलरली जो चीज़ें दे रखी है एनसीईआरटी ने उसे पार्टिकुलरली ही लर्न करना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। जो छोड़ के जाओगे एग्ज़ाम में वही आएगा। FeSO4 एक्वस प्लस, अब यहाँ पे देखो ये था Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन Cu। तो Cu भैया गए कहाँ? निकलो बाहर, निकाल दिया इन्हें बाहर। इनका कलर लर्न कर लो, फिर से बोल रहा हूँ ब्राउन कलर, साइनी ब्राउन, रेड ब्राउन बोल लेना। FeSO4 का कलर अभी मैंने बताया था कि ये ग्रीन विट्रॉल कहते हैं तो ये ग्रीन होगा, ये ब्लू विट्रॉल कहते हैं तो ये ब्लू होगा। अब ये सॉलिड हो गया प्लस ब्लू प्लस, तो ये जब इसका साथ इसका रिएक्शन हुआ तो Fe मोर रिएक्टिव देन Cu। तो इसने कहा कि Cu भैया आप जाओ। तो ये रिएक्शन कई बार पूछा इसलिए मैं इसको लिखने का फॉर्मेट भी बता दे रहा हूँ। व्हेन Fe reacts with CuSO4 it forms, अब इसको अपने फुल फॉर्म में लिखना, इट फॉर्म्स FeSO4 एंड Cu। ये तो बहुत नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि ये आयरन नील के फॉर्म में देगा। सो व्हेन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, सो कलर ऑफ CuSO4
जो कि आपका मैंने बताया ब्लू होता है, विल चेंज टू FeSO4 हो जाएगा। तो FeSO4 होने के नाते इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और आयरन नेल पे Fe के जो नेल हैं जिसमें जो इसमें डिप किया गया उसका कलर क्या होगा, उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। वाई? तो बिकॉज ऑफ डिपोजिशन, ऑफ कॉपर, ऑन इट, डिपोजिशन ऑफ कॉपर हो जाएगा इसके ऊपर, इसलिए इसका कलर हमें ब्राउन दिखने लगेगा। इतना ही था इस रिएक्शन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको मार्क कर लो, बार बार मार्क कर लो। अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो 2Cu जो कि सॉलिड होगा प्लस O2। फिजिकल स्टेट क्लियर रहेंगे तभी लिखना, वरना मत लिखना 2CuO। अब 2CuO, बट इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा हीट। अब बताओ अब इसका कलर बोलो, कलर ब्राउन होगा। ये जो है ऑक्सीजन है, ये तो गैस है। अब ये जो है देखो, इसका जो ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब आगे आपसे इसी रिएक्शन को, अब इसके बताता हूँ, इस पर क्वेश्चन बहुत आए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। इससे जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देंगे तो Cu प्लस H2O, इसे स्टार मार्क कर लेना, इसे मार्क कर लो, चाहे जो मार्क कर लो, ये H2O बन गया। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है बेसिकली देख लो। अब ये क्या था, ये तो ब्लैक कलर का था, ये क्या था, ये फिर से आ गए उसी जगह पे जहाँ से घूमना इन्होंने शुरू किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ आ गए फिर से। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कहता है अ साइनी ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस, एक मान लो X है जो कि साइनी ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस when reacts with oxygen and heated in the presence of oxygen, it led to the formation of its oxide, and when its oxide reacts with hydrogen, it comes back to its initial color, ये अपने initial color में आ जाता है, and led to the formation of water. Write a balanced chemical equation representing the statement. अब तुम्हें यही सेम लिखना है कि साइनी कलर्ड सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो देखो हीट करने पर Cu ब्लैक हो जाता है, और फिर Cu हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो Cu प्लस H2O बना लेता है। तो ये आपका जो रिएक्शन है। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी आपको हीट करना पड़ेगा, तभी ये इसको छोड़ेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ हो जाएगा, और ये देखो Cu प्लस H2O बन जाएगा। तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं आ गया, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर। तो ये रिएक्शन बहुत बार पूछे, यही सेम रिएक्शन। अब आपका यही जो सेम रिएक्शन है देखो, इसे Cu प्लस H2, इसे हम लोग थोड़ा सा भी अगर हम लोग इसे हीट करते हैं तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। अब देखो ये बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है ये रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए CuO क्या हो गया, एट लास्ट आके Cu बन गया, H2 क्या था वो बन गया। अब देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, केवल एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ही नहीं कहलाता, इसके लिए मैं भी सेपरेटली आगे बताता हूँ। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन था तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इतना क्लियर है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। बाकी ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों जो है एक साथ में हो रहे हैं। तो होप ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, आगे मैं इसे डिटेल में समझा। आगे अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं। तो बेसिकली देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम लोग डिफरेंस के थ्रू समझेंगे तो बहुत आराम से एकदम क्लियरली समझ जाएंगे, और फिर अभी इसे हम अप्लाई भी करेंगे साथ ही साथ। देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दो चीज़ें याद होंगी। अब देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो खुद से सोचो, अगर कोई बॉडी है
मतलब और उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो प्रोटॉन तो हटते नहीं है, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होती है। तो मान लो एक एटम है, मान लो हीलियम, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। अभी 2 माइनस चार्ज है और 2 प्लस चार्ज है, तो दोनों इक्वल टू 0 में है। बट अगर इसमें से मान लो एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, तो यहाँ पर देखो क्या +1 आएगा, +1 आएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। किस में? पॉजिटिव चार्ज में, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे। इसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। तो या फिर कह सकते हो कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ हो सकता है। तो बेसिकली ये तो अभी आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट ऐसे याद रखो कि मतलब डिफरेंशिएशन के लिए इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों नेगेटिव चार्ज बढ़ता है? अब देखो यहाँ पे, अगर आपने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 प्रोटॉन हटा दिया होता तो 2 इलेक्ट्रॉन बचता, 2 इलेक्ट्रॉन बचता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता, वरना तो ये न्यूट्रल था, तो इस पर टोटल चार्ज ओवरऑल 0 था, तो इसलिए ये न्यूट्रल था। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ होती है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। एंड यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आगे जब आपके लिए टफ कंपाउंड्स आएंगे तो उसमें ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये सब नहीं चलता है, इसमें यही इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन और डोनेशन चलता है, जिसमें हम लोग को बहुत आराम से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कहाँ ऑक्सीडेशन है कहाँ। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन जिसका होगा वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अब देखो, जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, और यहाँ पर जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, तो जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होप कि ये पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी A to Z। अब देखो, जहाँ पर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हों, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये टॉपिक भी क्लियर है, तो पूरा ऑक्सीडेशन पूरा रिडक्शन क्लियर है। अब इसके हम कर लेते हैं एग्जाम। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, ZnO+C, ठीक है। तो ZnO+C के एग्जांपल में, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस तरह का था ये, अब ये जब आगे रिएक्ट किया तो Zn+CO बन गया। इसको हीट की भी ज़रूरत होती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जिंक ऑक्साइड था जो कि अब जिंक बन चुका है। क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे आप देखो, खुद से देखो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ देखो रिडक्शन हम लिख देंगे, रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पर केवल और केवल कार्बन था, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अभी मैंने बताया। तो देखो दोनों साथ में हो रहे हैं, दोनों क्या है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। अब जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ZnO। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन? जिसका ऑक्सीडेशन हो वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन? रिड्यूसिंग एजेंट C हो गया। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस आपका है जो है वो C है, दैट इज़ कार्बन। रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है? तो वो आपका ZnO है, क्योंकि देखो यहाँ से रिडक्शन हुआ तो ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया। ये आपका था क्या? ये आपका अल्टीमेटली था रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा, जो कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है, ये अक्सर बहुत ज़्यादा जगहों पर बोर्ड पे बहुत बार आया है, MnO2+4HCl, ठीक है। अब ये MnCl2+Cl2+2H2, इसे मैं कहूँगा अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रट लेना। अब देखो ये क्या है, MnO2 था, MnCl2 बन गया, ध्यान से देखना इसे, MnO2 MnCl2 बन गया। तो MnO2 MnCl2 बन गया, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहा। ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के रिमूवल को कहते हैं रिडक्शन। ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन
था, बट यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को मैंने क्या बताया? ऑक्सीडेशन को मैंने बताया कि आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कुछ भी ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन हट गया। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? खुद से बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका हो गया रिड्यूस सब्सटेंस। रिड्यूस कौन हो गया? MnO2। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट HCl हो गया। अच्छा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस वही सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन HCl का हुआ है। रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस वही है जिसका रिडक्शन हुआ है। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस MnO2 है। अल्टीमेटली ये सब क्या है? ये सब रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका एग्जाम्पल क्लियर हो गया, इसे पढ़ लेना। और ये क्लोरीन गैस के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रिएक्शन लेबोरेटरी में। ये क्लोरीन है, ठीक है, तो ये क्लोरीन गैस के लिए यूज़ होती है। और ये रिएक्शन मैं कहूँगा पूरा लर्न करके जाना। और ये देखो यहाँ से ऑक्सीजन हटा इसीलिए ये रिडक्शन, यहाँ से हाइड्रोजन हटा इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। अब लास्ट में हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो है टॉपिक से एक एग्जांपल था उसे कवर कर लेते हैं, जो कि है C6H12O6 जो कि एक्वस फॉर्म में होता है प्लस 6O2। ठीक है, ये तो गैस होता है। इससे क्या बनता है? 6CO2 जो कि एक्वस में ही जाएगा प्लस 6H2O। ठीक है, ये लिक्विड प्लस एनर्जी। अब एनर्जी कितनी? एनर्जी 38 ATP। ठीक है, ये हो गया। अब कहता है कि अब पहले तो ये देखो ये है किसका रिएक्शन है? रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन पूछता है वाई रेस्पायरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? तो मैंने अभी आपको बताया, जब प्रोडक्ट के साइड में एनर्जी या हीट रिलीज़ हो रही हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो बेसिकली एनर्जी इज़ इवॉल्व्ड ड्यूरिंग respiration and, और थोड़ा सा अच्छा लिखना है तो ये भी लिख दो, एंड एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड ऑन प्रोडक्ट साइड hence therefore it is an exothermic reaction। अब ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पर एनर्जी या फिर आपकी जो हीट है वो इवॉल्व हुई है। देखो एनर्जी यहाँ पे आपकी निकली है, एनर्जी आपने दिया नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो होता है ये भी देख लो, फोटोसिंथेसिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे ध्यान रखना क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि देखो 6CO2, ठीक है, तो जो 6CO2 होता है बेसिकली ये सब एक्वस फॉर्म में प्लस 12H2O ये लिक्विड होगा। अब देखो यहाँ पर एंडोथर्मिक क्यों? यहाँ देखो सनलाइट आप दे रहे हैं ना, सनलाइट दे रहे हैं तो जब एनर्जी दोगे तब तो एंडोथर्मिक होगा, जब एनर्जी रिलीज़ होगी तब एक्सोथर्मिक होगा ना। यहाँ देखो यहाँ एनर्जी रिलीज़ हुई थी तो यहाँ एनर्जी दे रहे हो तो सनलाइट, तो ये एंडोथर्मिक। और क्या चाहिए तुम्हें? क्लोरोफिल हो गया। अब जब क्लोरोफिल मिल गया तो अब देखो फॉर्मेशन क्या होता है? C6H12O6 दैट इज़ बेसिकली क्या? एक्वस फॉर्म में होगा जो कि तुम्हारा ग्लूकोज होता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है और आपका जो है वाटर भी इवॉल्व होता है प्लस 6H2O जो कि लिक्विड होता है ये भी। तो यहाँ पर आप देखिए इसीलिए ये क्या है? एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्लस यहाँ पे हमें ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में ये लोग डाइल्यूट इवॉल्व करते हैं। तो देखो ये सिंपली एंडोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज एनर्जी इज गिवन हियर इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। इफ सनलाइट इज नॉट हियर देन दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। और एक और रिएक्शन होता है जो कि मतलब बहुत कॉमनली यहाँ से एक पूछता है, तो जो एक मतलब नॉर्मल सा एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है बट इसे पढ़ते नहीं है लोग, छोड़ देते हैं। ये कहता है कि द गैस विच इज़ इवॉल्व्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल्स, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मत करना वरना ये रिएक्शन नहीं बैलेंस कर पाओगे। कार्बन मोनोऑक्साइड
प्लस क्या, और उसका बताता है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है। एनसीईआरटी में तो उसने ये भी दिया है कि जो है 340 एटीएम पर इसका रिएक्शन कराते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो ये देखो ये बनता क्या है, CH3OH। ठीक, बेसिकली तो इसे छोड़ना नहीं है, CO+2H2। ये देखो ये फिर से देखो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, CO दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन होगा, और यहाँ पर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन होगा। वैसे अभी आपको इसके नेम की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। CH3OH है, OH लगा है इसीलिए लास्ट में OL आएगा। कार्बन एक है इसीलिए मेथ टर्म आएगा, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, तो ये मेथेनॉल होता है, CO+2H2 लेट द फॉर्मेशन ऑफ CH3OH मेथेनॉल। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कुछ रिएक्शन और है एनसीईआरटी में जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से, जैसे कि एक रिएक्शन है ZN जो कि बेसिकली सॉलिड होता है। इसका अगर हम लोगों ने CuSO4 के साथ रिएक्शन कराया बस, तो क्या होगा। अब देखो वही वाली बात कि ZN जो है पूरी एक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, तो ये कहेगा कॉपर भैया तुम निकलो यहाँ से, हम आ रहे हैं ZnSO4। अब देखो ये आपका एक्वस फॉर्म में आएगा, और Cu क्या करेंगे, ये तो चल दिए साइड होके, इन्हें कह दिया सॉलिड। अब जो एनसीईआरटी नहीं बताती है वही एनसीईआरटी पूछती है, जिसका जो सोल्यूशन का कलर होता है वो होता है कलरलेस। ये कौन सा कलर होता है, ये होता है ग्रे। CuSO4 का कलर कितने बार बताया मैंने, CuSO4 का कलर होता है ब्लू, इसे कहते हैं ब्लू विट्रॉल। तो ग्रे ब्लू से ये कलरलेस हो गया, और ये ब्राउन पड़े रहे। तो देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है कॉपर से ऊपर है, इसलिए इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट बनाया जिसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। ये एमसीक्यू में भी पूछता है, तुमको कह देगा कि कलरलेस इसमें से कौन है, तो कलरलेस कौन है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। ठीक है, एक और रिएक्शन है जो कि मतलब बहुत कम पूछी जाती है बट पूछी जाती है कभी कभार। जैसे अगर हम लोग लेड का रिएक्शन जो है कॉपर क्लोराइड के साथ करा देते हैं, जो कि बेसिकली एक्वस होता है, तो क्या होगा, तो PbCl2 का फॉर्मेशन होगा जो कि एक्वस होगा, प्लस कॉपर का फॉर्मेशन होगा जो कि सॉलिड होगा। तो देखो लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो PbCl2 बन गया, और कॉपर जो है सॉलिड ये ब्राउन कलर का बाहर हो गया। तो ये ऑलमोस्ट इतने रिएक्शन थे जो कि इम्पॉर्टेंट। एक और प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एक एक्टिविटी है जो कि और एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन पर बेस्ड है, आपकी ही सिलेबस की है, जिसमें कि हमारा तो रिएक्शन होता है, पहला देखो Na2SO4 प्लस BaCl2। अब ये क्या था, एक्वस था, ये क्या था, एक्वस था, बट यहीं जब इसका रिएक्शन होगा तो ये देखो Na और Cl, तो 2NaCl, 2NaCl क्यों, यहाँ Cl पे भी 2 चार्ज था, Na पे भी 2 चार्ज था, तो 2NaCl हो गया। और BaSO4 जो है वाइट पीपीटी के फॉर्म में जाएगा, कैसे, वाइट पीपीटी। तो वाइट पीपीटी मतलब वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो ये क्या क्या है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर क्या है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, तो देखो ये क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है, किस कलर का है, कलरलेस। ये क्या है, बैरियम क्लोराइड, क्या है, कलरलेस, कलरलेस है। ये क्या है, वाइट पीपीटी, और ये अगेन से क्या है, कलरलेस है। नेम जान लो सबका, सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, ये बैरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, इसी को कहते हैं कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल था। 2 प्रेसिपिटेट रिएक्शन टोटल आपके सिलेबस में है, एक ये है और एक और जो है वो ये है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स PbI2, ये पीपीटी है, प्लस 2KNO3। ठीक है, तो ये भी एक्वस फॉर्म में, ये पीपीटी है। अच्छा, PbI2 लेड आयोडाइड किस कलर का पीपीटी है, ये येलो कलर का पीपीटी है। ये क्या है, ये कलरलेस ही रहने वाले हैं, इन लोग का काम नहीं है कोई भी, बस एक्वस और कलरलेस ही कलरलेस ही। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन,
पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, इसी को देखो पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, मैंने बताया पहले भी पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, तो हमने मेनली इन सारे रिएक्शन को कवर किया। और तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है, इन दोनों रिएक्शंस को आप याद कर लेना, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स PbI2, जो कि आपका PBT जाएगा प्लस 2KNO3। ठीक है, तो ये येलो कलर का PBT होता है, येलो कलर का PBT होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो ये एक रिएक्शन क्योंकि ऐसे आपको देगा कि राइट द एग्जांपल ऑफ 2 प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो एक ये हो गया, और ये दोनों, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस। और दूसरा आप लिख देंगे Na2SO4 जो कि एक्वस होगा, प्लस BaCl2 जो कि एक्वस होगा। इसका जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2NaCl प्लस BaSO4, ये आपका वाइट PBT रहेगा, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट रहेगा, ये कलरलेस ही रहेगा, मैंने बताया इसे टेबल सॉल्ट कहते हैं। ये भी कलरलेस, ठीक है, ये भी कलरलेस। अब ये सारे हमने पूरे ऑल चैप्टर्स के ऑल द रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस थे, इम्पॉर्टेंट थे, नॉन इम्पॉर्टेंट थे, एक्टिविटी के थे, सारे के सारे हमने कवर कर दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है वो ये हैं कि AgCl और PbI2 और BaSO4 और CuS, ये सब जहाँ भी आपको दिखेंगे ये प्रेसिपिटेट ही बनाएंगे। ये ब्लैक कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, ये और ये दोनों के दोनों वाइट कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो इतना आपको लर्न करना है, बाकी हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक दिस एंड हिट द सब्सक्राइब बटन इफ this video is little bit informational for you for the all the updates. Thank you very much. Like and subscribe and support for the further videos. Thank you.